الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال الله تعالى خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا ہمارے تعلیم و تعلم سے کیا تعلق ہے. دیکھیں، ہر وہ چیز جو انسان کو علم دین سے قریب کر دے، علم نافع سے قریب کرے، وہ علم نافع ہے اور اس کا فائدہ انسان کو دنیا اور آخرت دونوں ملنا ہے. اور جو فضیلت اس حدیث میں آئی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، وہ بھی اس فضیلت میں شامل ہے. واللہ اعلم بالصواب. وجہ یہ ہے کہ حدیث میں جو بات کہی گئی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور قرآن کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. ہم عربی سیکھ رہے ہیں گرامر کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے. تو اگر ہماری نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل کرے تو حدیث کے مطابق ہم اور آپ بھی ان بہتر لوگوں میں انشاءاللہ تعالیٰ شامل مانے جائیں گے. اس دنیا میں جتنے بھی علوم ہے، علم ہے، فنون ہے، جو علم و فن حاصل کیے جاتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور سب سے افضل علم دین ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہر وہ علم جو دین کے علم کے حصول میں معاون ثابت ہو، وہ علم نافع ہے. اور جو نصوص علم دین کے حصول کی فضیلت پر آئے ہیں اس میں وہ بھی شامل مانے جائیں گے. آج کی جو میری کلاس ہے، ہماری کلاس ہے، آپ لوگوں نے کافی حد تک اچھی کوشش کی اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے. کوئی یہ جو اوپر ہیڈ لائن ہے اس کو پڑھے، پھر آگے پڑھائی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ میں سے کوئی بھی آمینہ فردوس آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اضف الاسماء الآتیۃ الی المتکلم والمخاطب والغائب والغائبۃ کما هو موضح فی المثال. موضح، ہاں ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ ترجمہ کیجئے سے کیا ہے؟ آنے والے اسماء کا متکلم، مخاطب، غائب اور غائبہ کی طرف اضافت کرو جیسا کہ مثال میں واضح کیا گیا ہے. جیسے قلم دیا گیا ہے بطور مثال. سب کو دکھ رہا ہے لفظ قلم؟ تو اس کی اضافت انہوں نے متکلم کی طرف کی اور کہا ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے. ٹھیک ہے. ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے. ھذا قلمہ، یہ اس کا قلم ہے. ھذا قلمھا، اور یہ اس لڑکی کا قلم ہے. تو اسی پیٹرن پر آپ کو ان سارے ورڈ کو ڈھالنا ہے. کتاب، سریر،
اسم مندیل ابن سیارہ مفتاح اور ید یہ سارے الفاظ ہیں. تو ان میں سب سے پہلے آپ کو انہی پیٹرن پر سارے ورڈز کو ڈھالنا ہے, ایسے ہی سانچے میں بنانا ہے. اس سے پہلے کہ میں تمام لوگوں سے بنوانا شروع کروں, کچھ سوالات کرتے ہیں بیسک, اور اس کے لیے سب سے پہلے میں آواز دوں گا بشرا شیخ کو. آپ مائک پر آ جائیں. اور وعلیکم السلام کی برکات. دیکھیں یہ جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں نا, قلم کے بعد ہادا قلمی, ہادا قلمو کا, ہادا قلمو, ہادا قلموہا, یہ کون کون سے سیگے ہیں؟ اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے اسما کو یعنی جو ناؤن ہیں ان کو ان کی اضافت کیجئے متکلم کے سیگے کی طرف, مخاطب کے سیگے کی طرف, غائب کے سیگے کی طرف اور غائبہ کے سیگے کی طرف. تو اس میں متکلم کون ہے؟ قلمی میں قلمو کا اور قلمہ اور قلمہا. اس میں مخاطب کون ہے؟ غائب کون ہے؟ یہ آپ بتائیں ذرا مجھے. جی حاضہ قلمی متکلم ہے اور حاضہ قلمو کا مخاطب ہے, حاضہ قلمہ اور حاضہ قلموہا غائب ہے. ماشاء اللہ, بہت بہترین, بہت بہترین جواب. آپ لوگ اس کو سمجھ پا رہے ہیں؟ سارے لوگ سمجھ پا رہے ہیں؟ جی شیخ. کوئی ایسا جس کو یہ مثالیں سمجھ میں نہ آئی ہوں, یہ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں؟ شفق اور فاطمہ جی شیخ نہیں سمجھا. نہیں سمجھ آیا. دیکھیں جب کسی کو کسی چیز کو متکلم کی طرف اضافت کی جاتی ہے تو اس کے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں فاطمہ آپ لوگ, یا آن لائن مدرسہ جوائن کیا آپ لوگوں نے؟ مدرسہ شیخ نہیں پڑھتے ہیں لوگ. اسکول سے پڑھتی ہیں آپ لوگ؟ جی شیخ. اچھا, وہاں پر عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے آپ لوگ کو؟ نہیں شیخ. اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور کوئی ایسا ہے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ سابیہ پروین آپ کو؟ مجھے بھی نہیں آیا سمجھ میں شیخ. اچھا, ایک بار بتا دیتے ہیں. اس لیے تو میں پوچھ رہا ہوں. میں نے جب پوچھا کہ سب کو سمجھ میں آیا تو آپ لوگ خاموش کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو بتانا چاہیے کہ ہم کو نہیں آیا, بات ختم. کیسے آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی شیخ الحمدللہ سمجھ آ گیا. الحمدللہ. یہ وسیم انصاری آپ کو؟ جی شیخ الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. الحمدللہ. اور یہ زہرا آپ کو؟ زہرا فاطمہ آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اچھا, کوئی مسئلہ نہیں, بارک اللہ. اب خوشبو ہے اور سبھی سابیہ پروین ہے اور شفق اور فاطمہ, 4 لوگوں سے بھی نہیں آیا. آپ لوگ اسکرین کو غور سے دیکھیں. پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیچے دیے گئے اسما یعنی ناؤن ہے ان کو ان کی اضافت کرنی ہے فلاں فلاں سیگوں کی طرف. ہاذا قلمی میں جو یہ ہے, قلمی میں یا جو ہے یہ متکلم کی علامت مانی جاتی ہے. متکلم یعنی فرسٹ پرسن, جسے انگلش میں فرسٹ پرسن کہا جاتا ہے. قلمی, کتابی یا جو کچھ بھی ہے لفظ, اگر یا متکلم کی طرف اس کی اضافت کی جائے گی یا کی طرف, جیسے قلم ہے تو قلم سے قلمی ہو گیا, ہاذا قلمی تو یہ میرا قلم ہے, تو یہ اس یا کی طرف اضافت ہی اس بات کی علامت مانی جاتی ہے کہ یہ متکلم ہے. دوسری مثال لیں, کتاب ہے تو آپ اس کو ہاذا کتابی بھی کہیں گے تو یہ متکلم کی طرف ہی مضاف ہوگا. کلیئر ہے؟ جی شیخ. جو یا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ متکلم کے لیے ہوتی ہے. متکلم یعنی فرسٹ پرسن, جیسے انگلش میں ہوتا ہے ویسے ہی عربی میں بھی ہوتا ہے. ہاذا قلمک, اس میں جو کاف ہے, کاف سب سے آخر میں چھوٹی کاف اس کو بولتے ہیں ہم, یہ دلالت کرتا ہے, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے, اشارہ کرتا ہے مخاطب پر. یہ تمہارا قلم ہے, یعنی کوئی ایسا انسان ہے سامنے جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں, جس سے آپ کچھ کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاذا قلمک, یہ تمہارا قلم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کاف کس بات کی علامت ہے؟ مخاطب کی علامت ہے. کلیئر ہے ایک دم؟ جی شیخ الحمدللہ.
आपको जी शेख इसी तरीके से हादा कलमुहु, ये हु जो है इसमें आखिर में जो हु लगा हुआ है ये दलालत करता है गायब के सेगे पर, यानी ये उसकी कलम है। ऐसे पर्सन के बारे में बात की जा रही है, थर्ड पर्सन जिसको बोला जाता है, जो सामने मौजूद नहीं है। ठीक है, जी एक मिनट जरा, एक जरूरी कॉल आ रही है, एक मिनट रुक जाए आप जरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही माजरत के साथ कि एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी और मुझे आप लोग के बीच से गायब होना पड़ा, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह आप लोग को जज़ाए खैर दे कि आप सब ने कोऑपरेट किया और सब लोग अभी अपनी अपनी जगह पे बाकी हैं। अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा ज़िद। अल्लाह ताला आप लोग को इल्म में, अमल में, दीन और दुनिया में तरक्की दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। कलमहू पर हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि कलमहू में जो हु की ज़मीर है वो क्या है, गायब पर दलालत करती है, यानी ऐसे पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में जो हमारे और आपके सामने मौजूद नहीं होता है। फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम, वो खुद बात करता है, इसीलिए उसको मुतकल्लिम कहते हैं। सेकंड पर्सन मुखातब होता है, जिससे हम कुछ बात कहते हैं। थर्ड पर्सन यानी कि गायब, और अरबी जबान में गायब के लिए हु की ज़मीर इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो क्या कहा इन्होंने, हादा कलमुहु, ये उसकी कलम है। तो आपको कभी भी किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ कहना होगा तो आप क्या करेंगे, हु ज़मीर को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? जी शेख। शेख हाँ। लड़की के लिए यूज होगा ना वो? हाँ, हु ये होगा, ये मेल के लिए होगा, और जी। हा जो है ये फीमेल के लिए होगा। जो आगे आ रहा है हादा कलमुहा, ये उसकी कलम है। तो ये हु जो होता है ये मेल के लिए होता है, और हादा कलमुहा जो सबसे लास्ट वाली मिसाल है ये भी गायब के लिए है, लेकिन फीमेल के लिए है, यही फर्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हु और हा दोनों गायब के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हु मेल के लिए और हा फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। कंफर्म, क्लियर है? जी जी शेख। जी शेख। अब सारी बातें समझ में आ गई है? जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम शफक और फातिमा से ही शुरू करते हैं। किताब जो लफ्ज है, फातिमा आप इसको मुखातब, मुतकल्लिम, गायब, इन सब की तरफ निस्बत करते हुए बनाइए। जैसे किताब है तो कैसे बनाएंगे आप, बताइए पढ़ के। हादा किताबुका। ये कौन सा सेगा होगा? हादा किताबी। हाँ, हादा किताबी। ये किताबी कौन सा सेगा है, सेगा कौन सा है? ये मुतकल्लिम का सेगा है, और किताबू का जो आपने बनाया था वो मुखातब का सेगा है। चले आगे बनाए, याद रखें कि कौन सा सेगा है ताकि समझ में आएगा आपको। आगे बनाए। हाँ, आगे तर्जुमा भी करें, तर्जुमा भी करें। आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। ये उसका किताब है। हाँ चले, और हादा फीमेल की तरफ करें। हाँ, फीमेल की हादा तरफ फिर करें। किताबुहा। हादा किताबुहा। बिल्कुल, माशाअल्लाह, बारकल्लाह। यानी कि आप लोग समझ चुकी हैं, बहुत अच्छी बात है। चले शफक, चले नीचे वाली। शरीर, शरीर का मतलब क्या होता है? शरीर का मतलब चारपाई या बेड होता है। ठीक है, जी शेख। तो आगे ट्रांसलेट करें आप। हाजा कुर्सी सरीरी। हाँ, यानी तर्जुमा क्या होगा? ये मेरा बेड है। ठीक है, आगे चले। हाजा सरीरुका। ये तुम्हारा बेड है। हाजा सरीरुहु।
हम्म हम्म हाजा सरीरुहा, हम्म ये लड़की का बेड है। उस लड़की का बेड है। लड़की का बेड है, हाँ। चले आगे कोई और करें। बुशरा शेख आप कर लें। जी, इस्मुल नाम, हाजा इस्मी, ये मेरा नाम है। हाजा इस्मुका, ये तेरा नाम है। हाजा इस्मु, ये उसका नाम है मर्द के लिए। और हाजा इस्मुहा, ये उसका नाम है औरत के लिए। माशाल्लाह, आगे पढ़े। खुशबू आप पढ़े। जी शेख, स्क्रीन आधा दिख रहा है मेरा। स्क्रीन को सही कर दे जरा, स्क्रीन को आप लोग सही कर दे ताकि किसी को दुश्वारी ना हो। मिंदीलुन, रुमाल। हम्म हाजा मिंदीली, ये मेरा रुमाल है। मुतकल्लिम होगा। ठीक। हाजा मिंदीलुका, ये तुम्हारा किताब है। मुखातिब होगा। किताब या रुमाल। सॉरी, रुमाल। जी जी। चले हाजा आगे। हाजा मिंदीलुहु, ये उसका रुमाल है। गैर मुतकल्लिम, लड़का के लिए है। और हाजा मिंदीलुहा, ये उसकी रुमाल है। गैर मुतकल्लिम। चले। हाँ हाँ, और आप इसके बाद कौन करेगा। इसके बाद कोई और करे। साविया परवीन। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। करे। वालेकुम अस्सलाम, हय्याकल्लाह। हाजा इब्नी, ये मेरा बेटा है। हाजा इब्नु का, ये तुम्हारा बेटा है। हाजा इब्नु, ये उसका बेटा है। हाजा इब्नुहा, ये उसकी बेटा है। हादा इब्नुहा नहीं होगा। ठीक है, चलेगा। चलिए कोई और चले। हाजी सैयारती, ये गाड़ी है। हाजी सैयारतु का, ये तेरी गाड़ी है। हाजी सैयारतुहु, ये उसकी गाड़ी है। मुज़क्कर। हाजी सैयारतुहा, ये उसकी गाड़ी है मुअन्नस के लिए। ठीक है ठीक है, हाँ। चले तहसीन। जी। मिफ्ताहुन यानी कीज, चाबी। हाजा मिफ्ताही, ये मेरी चाबी है। हाजा मिफ्ताहु का, ये तुम्हारी चाबी है। हाजा मिफ्ताहु, ये उस लड़के की चाबी है। हाजा मिफ्ताहुहा, ये उस लड़की की चाबी है। माशाल्लाह। चले और कौन बाकी है। ज़हरा फातिमा, चले आप करें, जल्दी करें। हम्म 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 मेरा हाथ के लिए क्या क्या था आपने। हाथ ही। हम्म हम्म हम्म। और ये मेरा हाथ है, इसको कैसे बनाएंगे। यदिया यदिया यदिया, ये मेरा हाथ है। चले वसीम अंसारी, आप कोई और ऐसा वर्ड ले आए जो अभी तो है नहीं उसमें। तो यद हो गया, मिफ्ता हो गया, सैयारा हो गया। आप कोई दूसरा वर्ड ले लें और उसको बनाकर बताएं मुझे, कोई भी नया वर्ड। हाजा बिनती, ये मेरी बेटी है।
तो हाजा नहीं होगा, हाजी होगा। बेटी है तो फीमेल है तो उसके लिए हाजी ले आएंगे। हाज़िही ठीक है। बेटी, यह मेरी बेटी है। हाज़िही बिन्तुका, यह तुम्हारी बेटी है। हाज़िही बिन्तुहु, यह उसकी बेटी है। हाज़िही बिन्तुहा, यह उस लड़की की बेटी है। हाँ, माशाअल्लाह बारकल्लाह, यानी कि तकरीबन तमाम लोग समझ चुके हैं। चलें, अच्छा लगा, आगे बढ़ते हैं। इक़रा, यानी इनको पढ़ें। ये आप लोग खुद डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, और तर्जुमा कर लीजिएगा, आगे बढ़ें, क्योंकि सारी मिसालें पढ़ाएंगे तो उसी में टाइम निकलेगा। किसी को कोई इश्काल होगा तो कल मुझे बताइएगा, ठीक है। शेख लका मीन्स क्या होता है? लका ये तुम्हारे लिए, लाम उसमें हर्फ जर है और काफ मुखातिब के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कभी मैंने बताया ना, तो लका तुम्हारे लिए यानी कोई सामने है, सेकंड पर्सन के लिए होता है। तो लाम का ही तर्जुमा लिए होता है, और काफ जब जुड़ जाता है तो तुम्हारे लिए। लका लकुमा लकुम, लके लकुमा लकुन्ना, ली लना, ऐसे इस्तेमाल होता है। ये सब ज़मीरें हैं, जो ज़मीर की बहसें आ रही है ना अभी, उसमें अभी कौन सी 9 की किताब है, तो उसमें आप लोग इसको प्रॉपर्ली समझ लेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। क्या ख्याल है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसानी फरमाए। हाँ हाँ हाँ, चले आगे बढ़े। ये लफ्ज मा को समझा रहे हैं आपके साथ। ये मोटा सा जो लिखा हुआ हेडिंग ना, मीम और आइन, मा, ये साथ के माने आता है। साथ इसका मतलब होता है, मा का मतलब साथ। जैसे खरजा हामिदुन मा खालिदिन, हामिद खालिद के साथ निकला। ज़हबत तबीब माल मुहंदिसी, डॉक्टर इंजीनियर के साथ गया। जलसल मुदर्रिसु माल मुदीरी, विद कह सकते हैं बिल्कुल। मुदर्रिस प्रिंसिपल के साथ बैठा, टीचर प्रिंसिपल के साथ बैठा। मम माका या अली, ऐ अली तुम्हारे साथ, या अली तुम्हारे साथ कौन है। मइया ज़मीली, मेरे साथ मेरा दोस्त है। आमिना तो मअहा ज़ौजुहा, आमिना के साथ, उसके साथ कौन है, उसका शौहर है। खरज अबी मिनल बैती, मेरे वालिद घर से निकले। मन खरज मअहू, और उनके साथ कौन निकला, यानी वालिद के साथ। खरज मअहू अम्मी, उनके साथ मेरे चचा निकले। तो लफ्ज मा का इस्तेमाल साथ के माने में होता है, ठीक है। जी शेख। क्लियर है? तो इस तरह के आप लोग 10 जुमले खुद से बना करके ले आएंगे जहां मा का इस्तेमाल हुआ हो। ये होमवर्क रहेगा आप लोगों का। कितने जुमले? 10 सेंटेंस आपको ले आने हैं, और ऐसे सेंटेंस जो यहाँ जिक्र नहीं किए गए हैं। यहां से मिलता जुलता अगर सेंटेंस आप लोग लेकर के आए तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। आप लोग को अपने जहन दौड़ा करके अपने दिमाग से सेंटेंसेस बनाने हैं। क्लियर है? हाँ, Any doubt? ओके ओके ओके, चलें आगे पढ़ें। 8 नंबर जो मिसाल है, बैत, बैतू का, बैतूहू, बैतुहा, बैती, अबुन, अबू का, अबूहू, अबूहा, अबी, ये सारे गायब, मुखातब और मुतकल्लिम वगैरह की तरफ इजाफत करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ते जाएं। कौन पढ़ेगा? आजकल आप लोग एक्टिव भी है क्या, या पढ़ने में दिल नहीं लग रहा है? एक बार पूछ रहा हूं, बहुत देर बाद जवाब आ रहा है, क्या मतलब है? सब खैरियत तो है? ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा पढ़ने में। चले बुशरा शेख आप पढ़े। बैतुल घर, बैतु का तेरा घर, बैतुहू उसका घर, बैतुहा उस औरत का घर, बैती मेरा घर। बस रहने दे, रहने दे। शफक और फातिमा दोनों बहनें पढ़े। अभी अभी आप या वालिद कह लें, अब के माने बाप होता है। अबू का तुम्हारे वालिद और अबू उसके वालिद फीमेल के लिए, और अबूहू मेल के लिए, अबूहा फीमेल के लिए। अभी और मेरे वालिद। हाँ,
आपके भाई का क्या नाम है? फखरुल हसन। माशाअल्लाह। चलें। अखू भाई, अखू का तुम्हारा भाई, अखूहू उसका भाई लड़के के लिए, और अखूहा उसका भाई लड़की के लिए, अखी मेरा भाई। आगे की मिसालों को पढ़ें। कौन पढ़ेगा? 1 मिनट। वसीम अंसारी, आगे की मिसालों को आप पढ़ें। जी शेख। अबी व अम्मी फिल बैती, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी घर में हैं। ऐना अबू का या हामिदुन, ए हामिद हामिदू। या हामिदू, चलें। ए हामिद तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? ज़हब इला शूके, बाजार की तरफ गए। अकू का तबीबुन, क्या तुम्हारा भाई डॉक्टर है? ला नहीं, हुआ मुदर्रिसुन, वह उस्ताद है। रहने दें। साबिया परवीन, आगे की मिसाल आप पढ़ें। जी सर। ज़ैनब रियाज, ज़ैनब रियाज में है। अखूहा फिल तौइफ व अबूहा फिल मदीनतुल मुनव्वरा, फिल मदीनतिल मुनव्वरा। फिल मदीनतिल मुनव्वरा। मुनव्वरा। उसका भाई तौइफ में है और उसके अब्बू उसके अब्बू मदीना मुनव्वरा में। मुनव्वरा में है। चलें आगे पढ़ें। सर नहीं। हाँ, एक मिसाल और पढ़ने से घबराया नहीं जाता है, मैं खुद ही। जी सर। हाज़ा तालिबु अबूहु वज़, ये क्या है सर? वज़ीर व अखूहु ताजिरु कबीरुन। हाँ, वजीर ये नाम है। ये डॉक्टर हाज़ा तालिबु अबूहु वज़ीरुन, ये तालिब इल्म उसके वालिद क्या है? वजीर हैं, यानी मिनिस्टर हैं। वो अखूहु ताजिरुन कबीरुन, और उसका भाई क्या है? बहुत बड़ा ताजिर है। तो ये उस स्टूडेंट के बारे में बातें हो रही हैं। अबूहु वजीरुन, उस तालिब इल्म का बाप क्या है? वजीर है, यानी मिनिस्टर है। और उसका भाई क्या है? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। क्लियर है? आगे चलें। रुकें आप 1 मिनट। ये वाली मिसाल कौन पढ़ेगा? खुशबू, आप पढ़ें। खुशबू, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। पढ़ें। मुहम्मदुन खालिदुन हामिदुन अब्बासुन महमूदुन हमज़तु तलहतु उसामतु। नहीं, एक मिनट। ये एक मिसाल 6 नंबर जो मिसाल है, मुहम्मद ज़हब अखी इलल मदरसत व ज़हब अबी इलल जामिआ, इसको पढ़ें और इसका तर्जुमा करें। पढ़ तो मैंने दिया। सिर्फ मेरा स्क्रीन में ये दिख रहा है। अच्छा, चले मैं ही पढ़ देता हूँ। ज़हब अखी इलल मदरसती, मेरा भाई मदरसा गया। व ज़हब अबी इलल जामिआ, और मेरे वालिद यूनिवर्सिटी गए। जामिया का मतलब यूनिवर्सिटी होता है। अल जामिया अल इस्लामिया अल मदीना अल मुनव्वरा, तो वो यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, चलें आगे पढ़ें। आगे पढ़ें। खुशबू, आप पढ़ें जो आपको यहाँ शो कर रहा है। जी सर। 9 नंबर से मुहम्मदुन, हाँ, मुहम्मदुन खालिदुन हामिदुन अब्बासुन महमूदुन हमज़तु तलहतु हमज़तु तलहतु उसामतु मुआवियतु इकरिमतु। ठीक है, ये नाम है सब और कोई बात नहीं है। चलें आगे पढ़ें। इक़रा अल अस्मा अल आतिया वज़्बुत
अवाखिरुहा, इन आने वाले नामों को पढ़ें और इनके आखिर में जबर जेर के साथ पढ़ें। जब्त के माने होता है उन पर हरकत लगाना, यानी जबर जेर पेश लगाना। चलिए, खालिदुन, हमज़तु, अम्मारुन, अनसु, मुआवियतु, अनसुन, मुआवियतु, हामिदुन, उसामतु, उकरमतु, अब्बासुन, इकरमतु, अब्बासुन, मुहम्मदुन, तलहतु। इकरमा इब्ने अबी जहल ये कौन थे, जानते हैं आप लोग? अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई। और सहाबी भी हैं, ये सहाबी भी हैं। जी। अबू जहल के लड़के थे, बाद में मुसलमान हुए थे फतेह मक्का के बाद। इनका नाम इकरमा था, इकरमा बिन अबू जहल। ठीक है, चलिए आगे पढ़ें, आगे पढ़ें। ये अल कलिमात अल जदीदा, इनको लिख लीजिएगा और इनकी प्लूरल भी लिखिएगा आप लोग। प्लूरल का मतलब होता है जमा। ये वाहिद है तो इनकी जमा क्या आएगी? चलिए आगे बढ़े। अज़्ज़मीलु, नहीं रहने इसको मत पढ़े, आगे पढ़े। आगे वाला क्लास क्या है? अद्दरसुल हादी अशरा, 11वां सबक। बैती, जी शेख में पढ़ूं। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़िए। हादा बैती, ये मेरा घर है। बैती अमामुल मस्जिदी, मेरा घर अमामल मस्जिदे, अमामल मस्जिदे। अमामल मस्जिदी, मेरा घर मस्जिद के सामने है। बैती जमीलुन, मेरा घर खूबसूरत है। फीही हदीक़तुन सगीरतुन, उसमें छोटा बाग है। हादिही गुरफती, ये मेरा कमरा है। फीहा नाफिदतुन कबीरतुन व मरवहतुन जमीलतुन, मिरवहतुन जमीलतुन, ये बड़ा खिड़की है। हादिही गुरफती, ये मेरा कमरा है। फीहा नाफिदतुन कबीरतुन, इसमें बड़ी सी खिड़की है। व मिरवहतुन जमीलतुन, और एक खूबसूरत पंखा है। उसमें एक बड़ी खिड़की है और एक खूबसूरत पंखा है। हादा सरीरी वहादा कुर्सी वहादा मक्तबी, ये मेरा बिस्तर है, ये मेरी कुर्सी है और ये मेरी डेस्क है। साअती व कलमी व किताबी अलल मक्तबी, मेरा घड़ी, मेरा कलम और मेरी किताब डेस्क पर है। व हकीबती तहतुल मक्तबी, और मेरा बैग डेस्क के ऊपर है। तहत के माने नीचे होता है, तहत के माने नीचे होता है, तहत नीचे है, और मेरा बैग डेस्क के नीचे है। नाफिदतुन गुरफती, नाफिदतु गुरफती मफ्तूहतुन, मेरी खिड़की खुली हुई है। मेरे कमरे की खिड़की, नाफिदतु गुरफती, मेरे कमरे की खिड़की मफ्तूहतुन खुली हुई है। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई है। कल आप लोग ये अच्छे से पढ़ के आएंगे। अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि कहाँ जबर लगेगा, कहाँ जेर लगेगा, किस लफ्ज को कैसे पढ़ना है, आप सब लोग पढ़ के आएंगे। कल मैं सबसे पढ़वाऊंगा और होमवर्क करके ले आएंगे, ठीक है? इसे कोई सवाल या कुछ समझ में ना आया हो तो बताएं। ये पूरा पढ़ना है, 1-2 लाइन नहीं, पूरा। ये कोई समझे कि जितना पढ़ाएंगे उतना ही पढ़ाएंगे, नहीं, पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है? कोई इश्काल, कोई सवाल जो समझ में ना आया हो, या कोई बाहरी सवाल हो तब भी आप कर सकती हैं। पूरा 11 चैप्टर पढ़ना है या सिर्फ ये वो तमरीन लिखा है वहां तक? तमरीन से ऊपर तक। जी। अना उहिब्बु अबी व उम्मी व उहिब्बु अखी व उख्ती, यहाँ तक।
और शेख आपने जो बताया था वो नाउन का प्लूरल करना है, तो हाँ, ये जमीलू यानी क्या? जमील के माने होते हैं दोस्त, क्लास साथी। इसकी प्लूरल जुमला आती है, जुमला। जुमला। और ये जो जौज। अल-कुवैत, जी हाँ, जौज यानी अल-कुवैत ये देश का नाम है, तो इसकी तो प्लूरल बनेगी नहीं। जी जी, हाँ, वही हाँ, पूछना था, मतलब कंट्री का नाम है, उसकी प्लूरल कैसे बनेगी? बन जाती है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। और यहाँ पर प्लूरल इसको न बना के लाए, आप लोग उसको वैसे सिंगल लिख दीजिएगा, वो बाद में जी आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। हाँ।